کہ آج پاکستان میں ہر بات پر تقسیم ہے، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا۔ ٹاؤن شپ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جلسے سے وزیریا ویڈیو لنک خطاب، بولے ملک کو نئی قیادت کی ضرورت ہے، ملکی معیشت تاریخی بحران سے گزر رہی ہے، ملک بھر میں الیکشن مہم شروع کر رہے ہیں، ایک ہی مطالبہ ہوگا، الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ مزید کہا مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، جب تک پاکستان ہے فلسطین کے عوام تنہا نہیں رہ سکتے۔ معاشی انقلاب لے کر آئیں گے، ہم سبز معاشی انقلاب کے صورت میں آپ کو، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جدید ترین دنیا میں اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے، پاکستان کے عوام کے مطابق اور پاکستان کے مستقبل کے مطابق سوچنا ہے، تو یہی ہمارا ایک ہی راستہ ہے۔ اور یہ سب کام کرنے کے لیے ہمیں روایتی سیاست کو، تقسیم کی سیاست کو، گالم گلوچ کی سیاست کو، الزامات کی سیاست کو، پکڑ دکڑ کی سیاست کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب تک ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز کی غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، کہتے ہیں جنگی جرائم کے ارتکاب کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی اس قتل عام میں برابر کے مجرم ہیں۔ صہیونی ریاست بے گناہوں کا لہو بہا کر جنگی جرائم کی مرتکب ہو رہی ہے۔ حسن رضا کی رپورٹ دیکھیے۔ کے اسپتال پر اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری پر نون لیگ کی قیادت کا اظہار تشویش۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہسپتال پر اسرائیلی فضائی حملے میں بچوں سمیت 500 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت پر صدمے کا سامنا ہے۔ صہیونی ریاست بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کیے بغیر فلسطینیوں کی بدترین نسل کشی کر رہی ہے۔ جنگی جرائم کے ارتکاب کی حوصلہ افزائی کرنے والے بھی اس قتل عام میں برابر کے مجرم ہیں۔ مسلم نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے بھی نہتے فلسطینیوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بچوں، خواتین اور اسپتال میں زیر علاج لوگوں پر بم برسانا بربریت کی انتہا ہے۔ اسرائیلی مظالم پر ہر بازمیر انسان کا سینہ غم کی شدت سے پھٹ رہا ہے۔ فلسطینیوں کا قتل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، یہ سوچ انسانی ہے، نہ ہی عالمی قوانین کی پاسداری ہے۔ صہیونی ریاست بے گناہوں کا لہو بہا کر جنگی جرائم کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے مزید کہا کہ مسلم ممالک انسانیت سوز مظالم رکوانے کے لیے اپنی اخلاقی، دینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کو وطن واپسی پر بحفاظت جلسہ گاہ پہنچانے کے لیے 2 پلان مرتب کر لیے گئے۔ پلان اے کے تحت سابق وزیر اعظم کو لاہور ایئرپورٹ سے ریلی کے ہمراہ مینار پاکستان لایا جائے گا، اور پلان بی کے تحت سابق وزیر اعظم ہیلی کاپٹر کے ذریعے مینار پاکستان گراؤنڈ میں پہنچیں گے۔ اسی حوالے سے تفصیلات دیکھیے زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کا معاملہ، نواز شریف کو بحفاظت جلسہ گاہ پہنچانے کے لیے 2 پلان تیار۔ سابق وزیر اعظم کو ریلی میں ایئرپورٹ سے باراستہ رنگ روڈ مینار پاکستان لایا جائے گا۔ پلان بی کے تحت سابق وزیر اعظم کو بذریعہ ہیلی کاپٹر مینار پاکستان پہنچایا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے بتایا کہ نواز شریف کا ہیلی کاپٹر شاہی قلعہ گراؤنڈ میں لینڈ کرے گا۔ نواز شریف کو دیوان عام کے سامنے سے گاڑی میں جلسہ گاہ لایا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم قلعہ اور گردوارے کی درمیانی سڑک سے جلسہ گاہ پہنچیں گے۔ نواز شریف کی آمد اور ہائی سیکیورٹی کے پیش نظر 21 اکتوبر کو شاہی قلعہ اور گردوارہ جانے والے راستے عوام کے لیے بند رکھے جائیں گے۔ 21 اکتوبر کو تاریخ رقم ہوگی، ایسا جلسہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ نون لیگ لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر نے مینار پاکستان میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 20 اکتوبر کو ہی ملک بھر سے ریلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ بھی سنیے۔ اتنا بڑا جلسہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ ایک تحریک رقم ہوگی۔ یہ مینار پاکستان میں جلسہ نہیں دیکھ رہا ہے، یہ مینار پاکستان چھوڑ دیں، پورے لاہور کی ہر روڈ کے اوپر دنیا ہوگی۔ یہ ان کا میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کے اوپر آسان ہے، جیسے انہوں نے اپنی بیوی کو مرگ بستر پر چھوڑ کر بیٹی کو لے کر پاکستان آئے، اب 21 اکتوبر کو وہ اپنی بیماری کو بھول کر پاکستان میں آ رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستانی عوام جو ہے ان کے اندر جذبہ نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے امید لگا لی میاں محمد نواز شریف صاحب کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ترقی کی طرف لے کر جائیں گے۔
मुस्लिम लीग नून के मीनार पाकिस्तान पर होने वाले जलसे की तैयारियां जारी हैं। स्टेज का निसफ हिस्सा मुकम्मल हो गया है। लाइटिंग का निज़ाम भी मुकम्मल कर लिया गया। जलसागाह में सिक्योरिटी के लिए खारदार तारें पहुंचा दी गई। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में कारकुनान से खिताब करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीनार पाकिस्तान में, और मीनार पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होने वाला नून लीग का जो जलसा है उसकी तैयारियां जो है जारी हैं। अगर इस वक्त मैं बात करूँ तो मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो स्टेज जो है जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आवाम से खिताब करेंगे उसकी तैयारियां जो है वो जारी हैं। उसके अलावा जो जितना लाइटिंग का सेटअप है उसको मुकम्मल कर लिया गया है, और जो साउंड सिस्टम है वो यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी सिस्टम की, तो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जितने भी पोल्स जिससे जो एसआर बांधा जाएगा इस पूरे ग्राउंड का, और उसके अलावा जो खारदार तारें हैं जो सिक्योरिटी के लिए लगाई जाएंगी वो भी पहुंचा दी गई हैं। जबकि नून लीग के मुताबिक 21 अक्टूबर को यहां पर पावर शो किया जाएगा, और तमाम इजलास से जितने भी नून लीग के कारकुनान हैं वो अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है यहां पर खुशामद करने के लिए पहुंचेंगे। और 21 अक्टूबर को बताया जा रहा है कि नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो यहां पर एयरपोर्ट से लैंड करने के बाद सीधा मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे, और मीनार पाकिस्तान जो है वो अपने नून लीगी कारकुनान से खिताब करेंगे और अपना अगला जो लाया अमल है सियासी उसके बारे में बयान करेंगे। हमजा। और अभी आपको बताएं कि लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफिडेविट कोटा लेने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने हनीफ अब्बासी की 25 साल कैद और जुर्माने की सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। साबिक एमए ने हनीफ अब्बासी के खिलाफ एफिडेविट कोटा लेने का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस मिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की अपील पर समाअत की। अदालत ने हनीफ अब्बासी की 25 साल कैद और जुर्माना की सजा कलअदम करार देते हुए उन्हें मुकदमे से बरी कर दिया। हनीफ अब्बासी के खिलाफ 2012 में 500 किलो एफिडेविट खरीदने का मुकदमा दर्ज किया गया था। हनीफ अब्बासी को इल्जाम था कि उन्होंने एफिडेविट का कोटा हासिल करने के बाद इसकी मेडिसिन नहीं बनाई। रावलपिंडी की इस्ताद मंशियात की अदालत ने 21 जुलाई 2018 को हनीफ अब्बासी को उम्र कैद और नाहली की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2019 में सजा मुअत्तल करते हुए इनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। हनीफ अब्बासी के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट ने हकायक के मुनाफी फैसला सुनाया था, लिहाजा अदालत ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। सरकारी वकील ने हनीफ अब्बासी की अपील की मुखालफत की, लेकिन सरकारी वकील ने इस बात का एतराफ किया कि हनीफ अब्बासी एफिडेविट स्मगल करने में मुलव्वस नहीं थे। 2 रुकनी बेंच ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। फैसला सुनने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी का कहना था कि अल्लाह के बाद अपने कायद नवाज शरीफ और फैमिली का शुक्रिया जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे। मैं अपनी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ जो बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही। मैं सबसे ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर जिस शख्स का शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के बाद नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं, जिन्होंने हर बुरे वक्त में मेरी फैमिली का साथ दिया। मैं उनको सिद्ध के दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अदालती समाअत के दौरान हनीफ अब्बासी अपने वकील हफीजुर रहमान चौधरी के साथ कमरा अदालत में मौजूद रहे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और अभी आपको बताएं कि कुरान के तर्जुमे में तहरीफ और बोर्ड की मंजूरी के बगैर अशात का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला मोहसिन नकवी को 18 दिसंबर को ज़ाती हैसियत में दोबारा तलब कर लिया है। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। कुरान के तर्जमे में तहरीफ और कुरान बोर्ड की मंजूरी के बगैर इरशाद का केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने अमीर माविया समेत दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के वकील ने बताया कि हुक्म पर अमल दरामद कराने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है, ताहम कमेटी अरकान के नाम नहीं दिए गए, न ही कमेटी की TORs जारी किए गए। वफाकी और सूबाई हुकूमत अदालत के अहकाम पर अमल दरामद करवाए। अदालत के हुक्म में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के वकील के मुताबिक वज़ीर आज़म सरकारी दौरे के बाइस अदालत पेश नहीं हुए। आइंदा समाअत पर निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पेश होकर पॉलिसी से बयान दें। शहरी अमीर माविया ने कुरान मजीद के तर्जुमे की तहरीफ और कुरान बोर्ड की मंजूरी के खिलाफ इरशाद के इक़दाम को चैलेंज कर रखा है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने PTI का नाम लिए बगैर कहा कि अपने मज़मूम मकासद हासिल करने के लिए सच्चाई को दागदार किया गया, कौम को जानबूझकर मायूसी का शिकार किया गया। 3.5 साल में मुल्की तारीख का 79% कर्ज लिया गया, जिससे मुल्क में महंगाई हुई और मुल्क दिवालिया होने जा रहा था।
वज़ीर आज़म स्कीम के तहत पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान थे। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि लैपटॉप स्कीम को दुनिया भर में सराहा गया। जो ये मंसूबा शुरू न कर सके, उन्होंने इल्जाम लगाया कि लैपटॉप देकर नौजवानों को खरीदा जा रहा है। हमने बगैर किसी सियासी और मजहबी अलहाक के लैपटॉप दिए। लाखों लैपटॉप मेरिट पर स्टूडेंट्स को मिले, उससे पाकिस्तान की तकदीर और दुनिया बदलती चली गई। दुनिया के अंदर एक फैक्टर है जिसे कहते हैं ई-लैंसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ई-लैंसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में पाकिस्तान हैज रिजन द लैडर विद अ वेरी फास्ट पेस। नाउ पाकिस्तान स्टैंड्स इन वन ऑफ द टॉप 3 countries of the top e-lancing countries of the world. गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से 2018 के बाद मुल्क की तारीख का 79% कर्ज लिया गया, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। तमाम माहिरीन मुत्तफिक थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। नौजवान वोट देने से पहले तहकीक करें कि इस दौरे हुकूमत में हर शोबे में ज्यादा काम हुआ। जो पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज करना है उसमें भी फैक्ट फाइंडिंग कीजिए, देखिए कब क्या हुआ, कब कितनी स्पेंडिंग्स हुई। कुछ फिगर्स मैं भी आपको बता देता हूँ, आप उसको ज़रूर जाके वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए, बाकी खुद फैसले कीजिए अपने। और अगर आप किसी भी फैसले पे पहुँचें, कुरान भी आपको बार बार यही दावत देता है कि आप गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, तफक्कुर और तदब्बुर की दावत देता है। तकरीब से वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद और डीजी ITPU डॉक्टर कामरान ने भी खिताब किया। तकरीब में 26 तलबा जबकि मजमूई तौर पर 3600 तलबा को लैपटॉप दिए गए। पार्किंग कंपनी का MCL को बड़ा झटका, सालाना 7 करोड़ जमा करवाने के बजाय सिर्फ 40 लाख अदायगी की गई। 6 करोड़ 70 लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आ गया। पार्किंग कंपनी ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर को बड़ा झटका दे दिया। पार्किंग कंपनी की जानिब से सालाना 75% पार्किंग फीस जमा न करवाई जा सकी। कंपनी सालाना पार्किंग फीस की मद में 22 करोड़ रुपए इकट्ठा करती है। आमदन का 80% मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी की मद में रखा गया। पार्किंग कंपनी ऑफिस किराए की मद में सालाना 1 करोड़ 56 लाख अदा कर रही है। गैर तरक्याती अखराजात की मद में 20 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। बल्दिया इस्मा लाहौर को 7 करोड़ जमा करवाने के बजाय सिर्फ 40 लाख रुपए अदायगी की गई। 6 करोड़ 70 लाख रुपए रेवेन्यू का खसारा सामने आ गया। पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी का इंकिशाफ बल्दिया इस्मा लाहौर की सराय आमदन रिपोर्ट में किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ताजरों का बुध को मार्केट्स खुली रखने की इजाज़त देने का खैर मकदम। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का कहना है कि निगरान वज़ीर आला मार्केटों के दौरे भी करेंगे और हमारे मसाइल हल कराए। शाह आलम मार्केट में अंजुमन ताजरान का इजलास हुआ। सदर मुजाहिद मकसूद बट का कहना था कि बुध को मार्केट्स खुली रखने की इजाज़त देने पर निगरान वज़ीर आला के मशकूर हैं। मोहसिन नकवी मार्केटों के भी दौरे करें और ताजरों के मसाइल हल कराएं। मुजाहिद मकसूद बट ने मार्केटों में शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। अवाम पर महंगाई का बोझ कम करने की कोशिशें। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया के ताजिर तंजीमों से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। चावल 25, दाल चना 15, दाल मसूर और सफ़ेद चना की कीमत भी 30 रुपये किलो कम कर दी गई। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक ताजिरों के प्राइस कमेटी अरकान के साथ इजलास में नई कीमतों का ऐलान किया गया। DC लाहौर राफे हैदर का कहना है कि चावल की फ़ी किलो कीमत 25 रुपये, दाल चना की 15 रुपये, दाल मसूर की 30 रुपये कम कर दी गई है। इसी तरह काला चना की कीमत में 10 रुपये, बेसन की 20 रुपये और सफ़ेद चना की 30 रुपये कम की गई है। और अभी आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 20% कमी को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि मनमाने किराए बढ़ाने के बाद 100 से 200 रुपये की कमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अशिया खुरनोश की कीमतें भी कम की जाएं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी भी शहरियों को रिलीफ न दे सकी। हुकूमत की जानिब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10 से 15% कमी का ऐलान तो किया गया, लेकिन असल किराए वसूल न करवाए जा सके। शहरी कहती हैं कि एक साल में किराए में कई गुना इजाफा हुआ है। अब 100 या 200 रुपए कम करने का कोई फायदा नहीं होगा। शहरियों का कहना है कि जब तक आम इस्तेमाल की चीजें सस्ती नहीं होंगी, रिलीफ नहीं मिलेगा। आटा देख ले, मुल्क की अपनी पैदावार है, उसके प्राइसेस में कोई कमी आई है, चीनी है, दालें, सब्जी। आवाम को जो गरीब आदमी है ना, उसको इन चीज़ों से गर्ज है, ना कि डॉलर से और पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल में कमी आई है ना, तो किराया भी कम होगा, ठीक है। लेकिन ये पेट्रोल हमने खाना नहीं है,
मेन पॉइंट जो सा है वो आटा चीनी की है, इस पे कमी करेंगे तो खुशहाल है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्ट मालिकान ने नए किरायों की लिस्ट बनाकर अवेसा कर दी, जिसके मुताबिक लाहौर से फैसलाबाद का किराया 750 रुपए से कम करके 700 रुपए, सियालकोट का किराया 800 रुपए से कम होकर 750 रुपए, लाहौर से मंडी बहाउद्दीन का किराया 1220 रुपए और सरगोदा का किराया 1150 से कम होकर 1100 रुपए रह गया। ट्रांसपोर्ट के किराए तो मामूली कम हो गए, लेकिन अवाम का मुतालिबा है कि महंगाई की शरह में मजमूई तौर पर भी कमी की जाए। तालीमी बाइकआउट करने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। लाहौर के 250 मजीद स्कूलों के असातिज़ा और सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 250 असातिज़ा को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तमाम असातिज़ा को 25 अक्टूबर को एजुकेशन अथॉरिटी ऑफिस तलब कर लिया गया। असातिज़ा की जानिब से आज एहतजाज और तालीमी बाइकआउट किया गया था। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और मजीद जो 200 के करीब असातिज़ा हैं, 225 के करीब असातिज़ा को शोकाज जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से ये शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। सुबह में भी 100 के करीब असातिज़ा को ये नोटिस जारी किए गए थे और अब साथ साथ ये भी कहा गया है कि इन शोकों का जवाब जो है वो 25 अक्टूबर को असातिज़ा का जमा करवाएं और अगर तसल्लीबख्श जवाब ना हुआ तो पीडा के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ 2 असातिज़ा रहनुमा जिनमें काशिफ शहजाद और वहीद मुराद सैफी को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर असातिज़ा रहनुमा जो राना लियाकत और यंग क्लर्क्स एसोसिएशन के जो सरबराह हैं फैज़ रसूल, उन्होंने इस सारे गिरफ्तारियों की मजम्मत की। उनका ये कहना है कि एहतजाज असातिज़ा का हक है। असातिज़ा के साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है इसकी मजम्मत करते हैं। ये गिरफ्तारियां जो है हमें एहतजाज से नहीं रोक सकती। कल भी जो है एहतजाज किया जाएगा और उनका ये कहना है कि हुकूमत अगर मुतालबात मानना चाहती है तो इसके लिए मुज़ाकरात किए जाएं। गिरफ्तारियां जो हैं वो हुकूमत की बौखलाहट की निशानी है, इसको किसी सूरत कबूल नहीं करते। किसी सूरत कबूल नहीं करते। आतिफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वन वे ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। 4 रोज़ में 1993 मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और रिक्शे थानों में बंद कर दिए गए। 128 वन वे मकामात पर ट्रैफिक और ज़िले पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे शाहजेब शहजाद से। जी आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले अब हो जाएं होशियार, क्योंकि वजीर आला पंजाब के हुक्म पर वन वे खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 4 रोज के दौरान 1990 से जायद गाड़ियां, मोटरसाइकिल और रिक्शे बंद कर दिए गए और साथ ही साथ इनको 2000 रुपए का जुर्माना भी किया गया है। वन वे की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लाहौर भर में 128 मुकामात पर नाकाबंदी की गई है, जिसमें नाकाबंदी के अंदर ट्रैफिक वार्डन्स के साथ साथ जो है वो थाना और जिला पुलिस भी शामिल है, जो कि वन वे खिलाफ वर्जी करने वालों को रोक रही है। आपको बताता चलूं कि वन वे खिलाफ वर्जी करने वाले जो हैं वो सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालते हैं। और अब जो वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा उसको सिर्फ चलान नहीं होगा, 2000 रुपए का चलान होगा और उसी के साथ साथ उसकी गाड़ी और मोटरसाइकिल 550 दफात के तहत जो है वो थाने में बंद भी की जाएगी और उसके बाद वो गाड़ी और मोटरसाइकिल उसको वापस लेने के लिए अदालत से भी रुजू करना पड़ेगा। इसी वजह से वजीर आला पंजाब के हुक्म पर क्रैकडाउन का आगाज किया गया है और सख्त तरीन नाकाबंदी की गई है। 2000 के चलान के साथ जो है वो पुलिस की और वार्डन्स की नफरियां जो है वो शहर की अहम शाहराहों पर तैनात कर दी गई है, ताकि वन वे की खिलाफ वर्जी को रोका जा सके। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं ताकि वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को किसी तरीके से काबू किया जा सके और उनको ये अवेयरनेस दी जा सके कि वन वे की खिलाफ वर्जी कितनी खतरनाक हो सकती है, जो कि ना सिर्फ आपकी जान बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरनाक हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब शहजाद।